हे संसार में बिखरे हुए लोगों, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न कोई सुख ही है। O scattered people on the earth, persons who possess neither faith nor knowledge, and who are of the doubting nature, suffer a downfall for the skeptical souls. There is no happiness either in this world or the next. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे मनुष्य, गीता किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष पंथ, किसी विशेष देश काल या किसी रूढ़िवादी विचारधारा वाला व्यक्ति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, चारों वर्ण, पाप योनि, चांडाल, पापी से भी महापापी, प्रत्येक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए अर्थात सबके लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्म ग्रंथ है और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्म ग्रंथ है। ओ मैन, गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक of any person, any particular caste, any particular class, any particular sector, any particular country, or any orthodox ideological person. Rather, it is for every caste, every religion, the four varnas, born of most lower family, the greatest sinner, or more than the sinner, of every age, every man and woman, that is for all. Truly, the Gita is the religious book of the entire human race, and it is a matter of great pride that the Gita is your religious book. ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको मोक्ष और सुख की सीमा तक ले जाएगा। ये कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसमें मन को पूछताछ करने की अनुमति मत दीजिए और न विश्लेषण ही कीजिए। शब्द को सुनिए और शब्द में डूब जाइए और एक एक कर शब्दों को सुनिए और शब्दों में डूबते जाइए। बस शब्दों को सुनते रहिए और
देखते रहिए कि आप गंतव्य स्थान पर पहुंचे कि नहीं। ये सिर्फ आपके लिए ही है। इस सृष्टि के आप एक प्रकाश बूंद हैं। आप सबकी केवल एक ही खोज है, मोक्ष के द्वार और मोक्ष की प्राप्ति। साथ ही साथ खोज है इस धरती पर आनंदमय जीवन का, अच्छा स्वास्थ्य का, अनंत शांति का, ज्ञान का, सौभाग्य का और अनंत जीवन का। हर हाल में मोक्ष, आनंद, सुख और अनंत शांति की प्राप्ति। इन सब चीजों को पाने के लिए हर इंसान गुरुदेव को ढूंढता है, मगर क्या आप इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब अथराइज गुरु या सदगुरु या फिर ईश्वर पुत्र का पादर्पण होता है। ईश्वर पुत्र ही आदि श्री हैं, जिनके मार्ग का अनुसरण करने पर आप ये सब कुछ हासिल कर लेंगे, क्योंकि आदि श्री ही मार्ग हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। Prabhu, we are your devotee. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Today we have tapped the all. Today we have tapped the Almighty. Prabhu, we are your devotee. We have tapped you, the Almighty. Prabhu, we are your devotee. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotee. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings.
quench our thirst. Lead us the path of righteousness and bless us with happiness. Prabhu bless us with happiness. Prabhu bless us with happiness. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. To love everyone. Rid our hearts of jealousy and let us always be your devotees. Prabhu, let us always be your devotees. Prabhu, let us always be your devotees. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Mahesh and Vishnu, your love is pure and true. Help us to protect our dharma and purify our karma. Prabhu, purify our karma. Prabhu, purify our karma. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण, तेरा ब्रह्म ज्ञान व्यापक था, व्यापक है, व्यापक रहे। ब्रह्म ज्ञान रूपाय विश्वोत्पत्त्य तापत्र विनाशाय आदि श्री वयं नमः।
जो ब्रह्म ज्ञान रूप हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण हैं तथा 3 तापों को नाश करने वाले हैं, उस ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण को हम नमस्कार करते हैं। हे ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण, काल प्रशासन की प्रेरणा से मैं आपसे मंत्रणा करने आई हूँ। O son of God Adi Shri Arun, I have come to consult you with the inspiration of Kal administration. हे देवी, मंत्रणा कक्ष में आपका स्वागत है। हे देवी, वेलकम टू द कंसल्टेशन रूम। अब आपको आज से ही कली पुरुष से टक्कर लेने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इसीलिए मैं आपकी सेवा में आई हूँ। अब आप कली पुरुष तथा उनके प्रतिनिधि का विनाश करने के लिए अपने योद्धाओं को आदेश दीजिए। अब आप लोगों को उपदेश देने में समय को बर्बाद नहीं कीजिए। Now you should start preparing to compete with Kali Purush from today itself. That's why I have come to your service. Now you order your warriors to destroy Kali Purush and his representative. Now don't waste your time giving instructions to people. आपने काल प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए समय से मुझको अवगत कराया है, यह तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को उपदेश करने में समय की बर्बादी नहीं हो रही है। मेरा यह अवतार संपूर्ण प्रेम का अवतार है। यह समय तो मुझे मेरे भक्तों के बीच प्रेम लीला का है, जिसमें लोगों को महसूस करवाना है कि सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य से प्यार किया, मनुष्य ने नहीं, मनुष्य तो बाद में प्यार किया। पूरा जगत ही उनके प्रेम के आकर्षण का परिणाम है। You have made me aware of the time fixed by the Kal administration. It is a very good thing. There is no wastage of time in preaching to the people. This incarnation of mine is embodiment of perfect love. This is the time for me to play love among my devotees, in which I have to make people realize that first of all God loved man and not man. The whole world is the result of the attraction of this love. परंतु आज की राजनीति में उसका प्रयोजन क्या है? But what is its purpose in today's politics? उसका प्रयोजन है मनुष्य को यह सिखाना है कि प्रेम के बिना सृष्टि नहीं है, और यदि सृष्टि हो भी गई तो प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। केवल राजनीति ही जीवन को पूरा नहीं करती और ना ही वह जीवन का लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रेम, केवल प्रेम, क्योंकि वहीं से भक्ति का रास्ता शुरू होता है। Its purpose is man has to learn that without love there is no creation, and even if the creation is done, then without love the life of man is incomplete. Politics alone does not fulfill life, nor is it the goal of life. The ultimate goal of the life is love, only love, because from there the path of devotion begins. वो सब तो ठीक है, परंतु आज के समय में अमेरिका तो सुपर पावर है ही, लेकिन अमेरिका को छोड़कर 3 और देश सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। आज की राजनीति ये कहती है कि अनेकों परमाणु बम से विकसित
शक्तिशाली कई देश हैं जिस पर कलि पुरुष के प्रतिनिधि का शासन है। वह इस धरती को मनुष्य शून्य बना देने के लिए तैयार बैठी है। वह देश इस धरती को मनुष्य विहीन कर दे, उससे पहले इस शक्तियों को नष्ट कर देना चाहिए। That's all fine, but in today's time, America is a superpower. But except America, 3 more countries are dreaming of becoming a superpower. Today's politics says that there are many powerful countries developed with many atomic bombs which are ruled by the representative of Kali Purush. She is sitting ready to make this earth human void. These powers should be destroyed before those countries make this earth humanless. उसका समय आने तो दीजिए। लेट दिस टाइम कम। पर वो समय कब आएगा ईश्वर पुत्र? But when will that time come, Son of God? आने ही वाला है, परंतु अभी नहीं। अभी तो ईश्वर पुत्र आदि श्री के संपूर्ण प्रेम लीला का समय है। विनाश का लीला आरंभ करने से पहले ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण मनुष्यों को यह संदेश देना चाहता है कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और प्रेम ही जगत का सार है। It's about to come, but not now. Now is the time for the complete love Leela of Son of God Adisri Arun. Before starting the Leela of destruction, the Son of God Adisri Arun wants to give this message to the human beings that ultimately love is the basis of the creation and love is the essence of the world. प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार। आदि श्री की परम कृपा से, आदि श्री की परम कृपा से हो जाए भव से पार। प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार। प्रेम के रस्ते पर प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार। वाह वाह, आपके जैसे संगीतकार के संगीत के शब्दों में उस परम शक्ति की कैसी व्याख्या है। वास्तव में संगीतकार की दूरदृष्टि ही समय की सीमाओं को लांघकर उस परम शक्ति को देख सकती है कि वह शाश्वत है। वाह! What is the explanation of the supreme power in the words of music? The words of music of a musician like you. In fact, only the foresight of the musician can transcend the limits of the time and see the supreme power that is eternal.
जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है। उतर कर अंबर से तारे, झिलमिल झिलमिल कर प्यारे, सुंदर राजकुमार बनकर नाच करते हैं हिलमिल सारे। ये कितना दिव्य नजारा है, प्यारा स्वर्ग हमारा है। राधा पूछे शाम से, हो राधा पूछे शाम से, कह दो कहाँ कैसा मौसम है। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, हीरो के महल पे जवाहर की बरसात। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, हीरो के महल पे जवाहर की बरसात है। सिर पर मोर मुकुट धारे, बेकल कल जमुना किनारे। है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, हीरो के महल पे जवाहर की बरसात। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रातें हैं, हीरो के महल पे जवाहर की बरसात है। सिर पर मोर मुकुट धारे, बेकल कल जमुना किनारे। है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है। पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है, ओ पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है। बागों में बहारों में ये सुख की भरी खाने। बागों में बहारों में ये सुख की भरी खाने। फसा में हम मन के गुब्बारे, दिशा में खुशी के फुवारे। है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। राधा पूछे शाम से, हो राधा पूछे शाम से, कह दो कहाँ कैसा मौसम है।
किसने पुकारा है। दुनिया बनाने ऐसे किसने पुकारा है। बेहद गगन हो जैसे मिलता इशारा है। सुखद संकल्प यही धारे, नयन वही नवयुग निहारे। है देवी राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ओ राधा पूछे शाम से, कह दो कन्हा कैसा मौसम है। ओ राधा पूछे शाम से, कह दो कन्हा कैसा मौसम है। हो सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है। ओ ऐसा मौसम है, 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 ऐसा मौसम है। कौन था ये? कोई दिव्य शक्ति थी, महाशक्ति। बस तुम्हें भी ऐसी ही दुनिया बनानी है।
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, गीता का तेजोमय उपदेश अध्याय 2 में ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ने या फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? वह बुद्धि कि युद्ध को जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और यदि हारोगे तो देवत्व को प्राप्त कर लोगे। जीत में सर्वस्व है और हार में देवत्व है। दोनों में कुछ न कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में ही कुछ न कुछ मिलता ही है। इन दोनों में से किसी में भी हानि नहीं है। इसी को ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ने कहा कि निष्काम योग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन से अच्छी प्रकार से मुक्त हो जाएगा। फिर उसके विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला न हो, बल्कि कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो और कर्म करने में तेरी आसक्ति भी नहीं हो। ऐसा करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। मुक्ति तो मिलेगी ही, लेकिन रास्ते में अपनी स्थिति दिखाई नहीं देगी। अर्जुन को निष्काम कर्म से ज्ञान मार्ग योग वाला मार्ग सरल लगा। हे मनुष्य, आप संसार के वास्तविक रूप को समझो। यदि आप गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकालेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि आप हथेली को अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डालेंगे तो गंगा जल मुंह तक पहुंच पाएगा। हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह पूछता हूं कि आपने अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है? हे मनुष्य, क्या आप ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण का यह गीता का तेजोमय उपदेश, जिसको कहते हैं रेडिएंट उपदेश ऑफ गीता, आपके जीवन में उठने वाले सारे तूफान को एक पल में रोक देगा? परंतु हे मनुष्य, क्या आप मेरे इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? यदि आपका जवाब है हाँ में, तो आप तैयार हो जाइए चलने के लिए रेडिएंट उपदेश ऑफ गीता अध्याय 3 के सफर में। हे मनुष्य, गीता का तेजोमय उपदेश अध्याय 3 को कहते हैं कर्म योग अथवा शत्रु विनाश प्रेरणा। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति हर पल, हर क्षण, हर समय ही करते हैं। कोई भी ऐसा पल संभव नहीं है जब मनुष्य बिना कर्म किए रह सके।
कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्म कर्तव्य के लिए किए जाते हैं और कुछ कर्म उद्धार के लिए किए जाते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा कर्म है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं? कौन सा ऐसा कर्म है जो आपको जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर उद्धार करा देगा, आवागमन से छुड़ा देगा और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा? द्वापर युग में इसका एनालिसिस भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए किए थे और वर्तमान कलयुग में इसका एनालिसिस मैं आदि श्री अरुण आपके लिए करूंगा। मैं उस एनालिसिस को आपके लिए आपकी ही भाषा में लेकर आपके सामने आया हूं। अर्थात इस संसार में सत्य शोध के अनुसार मेरे द्वारा दो धाराएं कही गई है। पहले का अर्थ सतयुग या त्रेता युग में नहीं, बल्कि अभी दूसरे अध्याय में कहा हूं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग बताया गया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म अनिवार्य है। हे मनुष्य, न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भागवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। आपको ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग अच्छा लगे, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रायः इस स्थान पर अधिकतर लोग भागवत पठ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही ना करें और हो गए निष्कर्मी, कहीं ऐसी भ्रम ना रह जाए। इसीलिए ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह कहता है कि इस बात को समझ लो कि कर्म को आरंभ नहीं करने से कोई निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं होता। शुभ और अशुभ कर्मों का जहां अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भागवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा पल संभव नहीं है जब मनुष्य बिना कर्म किए रह सके, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करता है। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हे मनुष्य, भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्म कर देता है। यहाँ कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। निष्कर्षतः भगवान कृष्ण कहते क्या हैं? उनका फिलॉसफी है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल जाने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं।
प्रकृति मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। इसके बाद भी मूर्ख लोग जबरदस्ती मन को रोककर भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं। वे पाखंडी हैं, पाखंडी हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे घोर युद्ध रूप कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन ने कहा कि आपके वचनों को सुनकर मेरी बुद्धि विचलित हो रही है, इसीलिए कृपा करके हमें कंफर्म करके बताइए कि बुद्धि योग और कर्म योग में से एक मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है? अर्जुन का प्रश्न तर्क संगत है कि यदि भगवान कृष्ण को कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर भयंकर कर्म रूप युद्ध करने के लिए क्यों कर रहे हैं? अगर ज्ञान की ही बात है तो वह अर्जुन कष्ट से ले ही रहे हैं, तो अपनों को मारने के लिए ऐसे भयंकर युद्ध में मुझको क्यों लगा रहे हैं? हे भाई, कितनी ही बार आपके मन में ऐसे प्रश्न आते होंगे कि आखिर कर्म क्यों करना? भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने से ज्यादा अर्जुन और उलझ रहा था। इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे एक बात बताइए जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। सच्चाई यह थी कि भगवान कृष्ण की बात को समझने के बजाय अर्जुन और ज्यादा उलझ रहा था। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मुझे कंफ्यूज मत करिए, बल्कि मेरी दुविधा को दूर करके कोई एक उपाय बताइए जिस पर मैं चल सकूं। भगवान कृष्ण ने जो बातें बताई वह गूढ़ है, अत्यंत गूढ़ है, वह कॉम्प्लिकेटेड है, वह गहरी है। भगवान कृष्ण ने जो बातें बताई वह प्रकृति के गुण का प्रभाव है, वह पूर्णतः हकीकत है, परंतु ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि यह तो बस ज्ञान की ही बातें हैं, इन पर चले तो चले कैसे? यही दुविधा अर्जुन की है। और भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे कि इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा है, दो प्रकार के विश्वास हैं। एक तो है सांख्य योग जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग जिसका लेना देना सिर्फ कर्म से है। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्जुन से कहे कि इस दुनिया में, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले से कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था, पराकाष्ठा, अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास। और दूसरा होता है कर्म योग, अर्थात निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति नहीं रखना। मनुष्य कर्मों को शुरू किए बिना न तो निष्क्रियता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों को छोड़ देने से सिद्धि यानी कि निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप
कर्म करे ही ना और स्वयं को सन्यासी कहलावे। ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्य को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप यह समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्मयोगी कहें। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म को न करने से या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ हासिल होगा। हे मनुष्य, यह दुनिया ऐसी है कि आप चाहें या ना चाहें, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप इस सच को याद रखें कि कर्म न करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह आप इस दुनिया में आए हैं या जिस तरह से प्रकृति ने आपको बनाया है, उसका गुण यही है कि आप हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं, सांसें चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्र चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा तो कर्म होता ही रहेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोक कर कर्म करता है, लेकिन अंदर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी अर्थात दम भी कहा जाता है, अर्थात झूठा और घमंडी है। खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, परंतु उसके अंदर खाना खाने की इच्छा हो रही है, तो वह उपवास या व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, अभी भी इच्छा है, तो भगवान कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। हे अर्जुन, पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में करके उनसे बिना लगाम लगाए काम करता है, तो वही व्यक्ति कर्म योग का पालन करता है और वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को बस में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से नहीं लगावे, तो उसे ही कर्मयोग माना जाएगा। जब इंद्रियां आपके वश में हों तो आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब इंद्रियां आपके बस में हों तो काम करने से रोक नहीं सकती। अगर आपकी इंद्रियां बस में है तो चाहे वह स्वादिष्ट खाने की माखी क्यों न हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हे मनुष्य, तू केवल कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म नहीं करने से तेरा जिंदा रहना भी संभव नहीं है। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध करने के लिए अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना अच्छा है। हे मनुष्य, आप निर्धारित किए हुए कर्म को करो, अर्थात कर्म बहुत से हैं, उन कर्मों में से कोई एक चुना हुआ है, आप उसी चुने हुए नियत कर्म को करो। कर्म करना ही श्रेष्ठ है। यदि आप कर्म करते रहेंगे और यदि आप थोड़ी भी दूरी तय कर लेंगे, तो जैसे पहले बताया हूं कि महान जन्म और मरण के भय से मुक्त करने वाला है, उद्धार करने वाला है। इसीलिए यह श्रेष्ठ है।
कर्म न करने से तेरा शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं कि शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? ये पुरुष जन जन्मांतर से, युग युगांतरों से शरीर यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसा वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, ठीक इसी प्रकार कीट पतंग से लेकर मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन्न मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे बराबर योनियों में ये जीव शरीर यात्रा ही तो कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। आप इस बात को मान लीजिए कि यदि आपको एक जन्म भी लेना पड़ा तो यात्रा जारी तो है। अभी तो पथिक चल ही रहा है, वह दूसरे शरीर की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं। ईश्वर में स्थित इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण करने वाला चक्र समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसको करने से आत्मा को शरीर की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। हे मनुष्य, आप इस कर्म को करके संसार रूप बंधन से छूट जाइएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह निर्धारित कर्म है क्या? हे मनुष्य, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो। यह सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं, क्या वे कर्म नहीं है? इस यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, जिस कर्म को करने में दुनिया रात और दिन व्यस्त है, वह कर्म नहीं है, बल्कि वह इसी लोक का एक बंधन है। कर्म तो मोक्ष अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः हे मनुष्य, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए श्रम दोष से अलग रहकर भली प्रकार से कर्म का आचरण कर। हाँ, आचरण कर। समदोष से अलग रहे बिना यह कर्म होता ही नहीं। इसीलिए आप इस सत्य को स्वीकार कर लो कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब नया प्रश्न यह है कि वह यज्ञ क्या है जिसको कि किया जाए? हे मनुष्य, यज्ञ को जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि यज्ञ आया कहां से, यह देता क्या है। जिस वस्तु का चिंतन करना है उससे पहले उस वस्तु की विशेषता का चित्रण कीजिए। ऐसा करने से उसमें श्रद्धा जागृत हो जाती है। उसके बाद उसमें बरती जाने वाली सावधानी पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। आपको याद रहे कि यहाँ पर ईश्वर पुत्र ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला कि कर्म एक निर्धारित क्रिया है। जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं है। गीता अध्याय 2 में पहली बार ईश्वर पुत्र ने कर्म का नाम लिया, उसकी विशेषताओं पर बल दिया, उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ने कहा कि हे मनुष्य, तो निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब प्रश्न यह उठता है कि वह निर्धारित कर्म है क्या जिसको आप करें? तब ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ने आपको बताया
कि यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। अब प्रश्न यह उठता है कि यज्ञ क्या है? यहां मैं केवल यज्ञ की उत्पत्ति और विशेषता बताऊंगा। गीता अध्याय 4 में यज्ञ का निखरा हुआ रूप आप देख सकेंगे, जिसको करना कर्म है। कर्म की यह परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार, कोई पदासीन है तो कोई सेवक, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी, कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को। और इसी कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्मों की भूमिका बनाए पड़े हैं। किंतु आदि श्री अरुण आपसे यह कहता है कि ये कर्म नहीं है। यज्ञ की प्रक्रिया के सिवा जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक की बंधनकारी कर्म है, या मोक्ष देने वाली कर्म नहीं है। सचमुच यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। हे मनुष्य, यज्ञ को जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि यज्ञ आया कहां से। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे यह कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब प्रश्न यह उठता है कि यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाला जैसा कि प्रचलित है? नहीं। मेरे तथा भगवान कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। तो प्रश्न यह उठता है कि प्रजापति कौन है? सच्चाई यह है कि जिसने प्रजा की मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश कर लिया है वह महापुरुष प्रजापति है। बुद्धि ही ब्रह्मा है। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, अर्थात उस महान पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोल। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद्य कही जाती है। क्रमशः विकारों का समन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर यह ब्रह्मविद्य कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती, वह ब्रह्मविद्य वरीयान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्मवेत्ता पुरुष दूसरे व्यक्ति को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की महान प्रकाष्ठा है ब्रह्मविद्य रिष्ट की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुष की बुद्धि मात्र यंत्र है। ऐसे पुरुष ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अछेत और अव्यवस्थित है। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त व्यस्त और विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना कहते हैं। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं। कोई काय कल्प कहता है, ये क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भव रोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्मा स्वरूप महापुरुष भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा
कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। कैसी वृद्धि? क्या मकान कच्चा से पक्का बन जाएगा? क्या इनकम अधिक होने लगेगी? ऐसा नहीं। यज्ञ इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना का पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा कर्म कर्म से चलकर उस परमात्मा से प्राप्ति करा देगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय। इसके बाद कुछ भी पाना शेष ना रहे। ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। जैसे जैसे आप यज्ञ में प्रवेश करेंगे और यज्ञ का अर्थ होगा आराधना की वृद्धि, वैसे वैसे हृदय देश में दैविक संपत्ति अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपत्ति है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपत्ति कहते हैं। परम देव को पाना संभव करती है, इसीलिए इसे दैवी संपत्ति कही जाती है, न कि बाहरी देवता जैसा कि लोग कल्पना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और ईश्वर पुत्र अरुण के शब्दों में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यज्ञ के द्वारा संबंधित देवता दैवी संपत्ति आपको आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। वही एकमात्र देने वाले हैं। इष्ट को पाने का दूसरा कोई विकल्प नहीं। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो स्थिति का भोग करता है वह निश्चित ही चोर है। जब उनसे पाया ही नहीं तो भोगेंगे क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो तत्वदर्शी हैं, वह निश्चित ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाले क्या बातें हैं? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे आपकी भाषा में यह कहना चाहता हूं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। हे मनुष्य, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस बचा हुआ अन्न को पान करने वाला ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। मेरी भाषा में ब्रह्म से उस बचे हुए अन्न को अर्थात ब्रह्म पीयूष को पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत तो छूट ही जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को भी समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई कि शरीर के लिए और शरीर के संबंधों के लिए कुछ मिले। उसे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से वह चलना प्रारंभ किया था। इससे बड़ी क्षति और क्या हो सकती है? जब शरीर ही नश्वर है तब इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? आराधना तो करते हैं, किंतु बदले में पाप को ही खाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह नष्ट तो नहीं होगा, किंतु वह आगे नहीं बढ़ेगा। यही कारण है कि मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपको निष्काम भाव से कर्म करने के लिए आदेश देता हूं। आदेश। अभी तक मैंने आपसे बताया कि यज्ञ परम श्रेय देती है और उसकी रचना महापुरुषों के द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं? संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं।
अन्य परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि अर्थात वर्षा से होती है। बादलों से होने वाली वर्षा नहीं, बल्कि कृपा वृष्टि। पूर्व संचित कर्म ही कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी। यही कारण है कि वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से वृष्टि नहीं होती। अगर यदि स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों होती? वह ऊसर भूमि उर्वर बन जाती। यहां कृपा दृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। उस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानिए। वेद ब्रह्म में स्थित महापुरुष की वाणी है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है। वेद मंत्र के श्लोकों का संग्रह नहीं है। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्मा ने, परंतु ये परमात्मा के साथ मिलकर तदनुरूप हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है। महापुरुष मात्र यंत्र हैं, यंत्र। इसीलिए उनके द्वारा वही बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता है। इसे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उस परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है। हे मनुष्य, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात देवी संपत्ति का उत्कर्ष, देवताओं के वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता वह इंद्रियों का आरंभ चाहने वाला पापी पुरुष है। और ऐसा पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसा विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं बल्कि अक्षय सुख है। अर्थात यज्ञ ऐसा विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है बल्कि अक्षय सुख है, ऐसा मान लो। इसमें इंद्रियों के संयम के साथ लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है। हे मनुष्य, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है कि यज्ञ क्या है, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा? हे मनुष्य, इसके संबंध में मैं आपसे यह कहता हूं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढेंगे किसे? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे पुरुष के लिए न तो कर्म की आवश्यकता है और न किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इस संसार में उस पुरुष से किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि है। जबकि पहले आवश्यक था, उसका संपूर्ण पापियों में कोई स्वार्थ, कोई संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अपरिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी में तृप्त, उसी में ओतप्रोत और उसी में स्थित है, जब आगे कोई सत्ता ही नहीं तो किसको खोजेंगे? खोजने पर मिलेगा क्या? उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वे चित्त ही न रहा। उसका संपूर्ण भूतों में बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेस मात्र भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब परमात्मा ही उपलब्ध है तो दूसरे से उसका क्या प्रयोजन होगा? हे मनुष्य, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ। जो करने योग्य कर्म है उसको अच्छी प्रकार से कर,
क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्मों के आचरण से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे मनुष्य, नियत कर्म और करने योग्य कर्म दोनों एक ही चीज है। जनक का अर्थ राजा जनक नहीं, बल्कि जन्मदाता को जनक कहते हैं। योग ही जनक है जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, आपके स्वरूप को प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग से संयुक्त बहुत से ऋषियों, जनक इत्यादि महापुरुष भी कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि का अर्थ होता है परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। पूर्व में जनक इत्यादि जितने भी महर्षि हुए हैं, वे इसी करने योग्य कर्म के द्वारा, जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं, लोक हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। अतः प्राप्ति के बाद तुम भी लोक नायक बनने के लिए कार्य करने योग्य हो। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं, क्योंकि यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। मन बड़ा चंचल है, ये सब कुछ चाहता है परंतु भजन नहीं चाहता। यदि सावधान होकर महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाला भी कर्म करना छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, ये तंबाकू खाते हैं, ये इत्र लगाते हैं, ये पान खाते हैं, अमान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएगा और वर्ण शंकर का कर्ता बन जाऊंगा तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर तो देखा सुना जाता है, परंतु अर्जुन भी इसी के भय से भयभीत था कि यदि स्त्रियां दूषित होगी तो वर्ण शंकर पैदा होंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण शंकर का कर्ता होऊंगा। वास्तव में आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि महापुरुष स्वरूप में स्थित होकर नहीं बरतता तो लोग उनका अनुसरण करने में क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपथ से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता का एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है तथा समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है। किंतु माता पिता के भूलों का संतान के साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि स्त्रियों का दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न नहीं होता, बल्कि शुद्ध स्वरूप परमात्मा की ओर अग्र न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकर है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मन अपने इंद्रियों के द्वारा प्रेरित होकर कर्म करता है और उसके कर्म से उत्पन्न होने वाले शुभ और अशुभ फल प्रारब्ध का निर्माण करता है। उस प्रारब्ध को भोगने के लिए मनुष्य दूसरा नया शरीर धारण करता है, अर्थात वह जन्म लेता है। इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं है।
यदि महापुरुष सावधान होकर नियत कर्म न करे तो लोगों से क्रिया न कर तथा लोगों से क्रिया न कराएं तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनेगा। साधना क्रम में चलकर उसे मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखर जाना शुद्ध परमात्मा के स्वरूप से भटक जाना है और यही मृत्यु है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग अर्थात त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और उनकी परस्पर चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। ये तत्व अर्थात उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जाना ही इनका तत्व जानना है। इसको जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के प्रवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए होते हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है, अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म में, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि अपना धर्म क्या है अर्थात स्वधर्म क्या है और पराया धर्म क्या है। वास्तव में व्यक्ति और उसके स्वधर्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता। स्वधर्म जैसे गुलाब और सुगंध, जैसे गुलाब में सुगंध, गुलाब और गुलाब के सुगंध को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी में शीतलता, पानी और पानी की शीतलता को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जो धर्म आपका आत्मा निर्धारित करे और आपकी आत्मा उसे स्वीकार करे उसे स्वधर्म कहते हैं। जो धर्म कोई व्यक्ति आपके लिए निर्धारित करे उसको पराया धर्म कहते हैं। आत्मा के द्वारा स्थापित धर्म स्वधर्म है तथा मनुष्य के मन के द्वारा स्थापित धर्म पराया धर्म है। अर्थात जो धर्म ईश्वर के द्वारा स्थापित किया जाए उसको स्वधर्म या अपना धर्म या धर्म कहते हैं। परंतु जो धर्म मनुष्य के मन के द्वारा स्थापित किया जाए उसको पराया धर्म या औपधर्म या अधर्म कहते हैं। इसलिए अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है किंतु पराया धर्म भय देने वाला है।
भगवान कृष्ण अर्जुन को इसलिए यह उपदेश दे रहे हैं कि तेरा धर्म युद्ध करना है, युद्ध करना। परंतु तुम भावना की इस नदी में बहते रहे हो और मन को अपने बस में ना कर सका तो तू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। इसीलिए मन को सन्यासी बना और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। पालन। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हो, सन्यास की भांति सब रिश्ते नाते को तोड़ने की बात कह रहे हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म के लिए कह रहे हो। क्या ये दोनों बातें विरोधी नहीं हैं? तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई न कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती ही है ना, जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में भावना होती है और भावना की जड़ में कोई न कोई रिश्ता अवश्य होता है। तो किसी न किसी रिश्ते के चलते ही भावना पैदा होती है ना। यदि मनुष्य अपने सारे रिश्ते को तोड़ दे और अपनी भावना को त्याग दे तो किसके लिए कर्म करेगा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने धर्म के लिए कर्म करेगा। हाँ, वह अपने धर्म के लिए कर्म करेगा। अर्जुन ने पूछा कि धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि धर्म के लिए भावना की नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बहती रहेगी ताकि गंगा, बहती रहेगी ताकि गंगा, भक्ति और धर्म की धारा, भक्ति और धर्म की धारा। आदि श्री के संग गंगा में करता रहा स्नान जग सारा, करता रहा स्नान जग सारा। धर्म अधर्म के भेद भुलाकर तू मेरी शरणागत हो जा, तू मेरी शरणागत हो जा। सब पापों से सब पापों से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म सब भेदों से न्यारे, धर्म अधर्म सब वेदों से न्यारे। अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल सारे। आदि श्री का ज्ञान है न्यारा, आदि श्री का ज्ञान है न्यारा। आदि श्री का ज्ञान है न्यारा, ब्रह्म ज्ञान के बोल है न्यारे। आदि श्री का ज्ञान है न्यारा,
ब्रह्म ज्ञान के बोल है न्यारे। हे नाथ नारायण कल की देवा, श्री कल की कल युग में नाम तुम्हारे। श्री कल की कल युग में नाम तुम्हारे। हे नाथ नारायण कल की देवा, एकमात्र आदि श्री हमारे। एकमात्र आदि श्री हमारे। हे नाथ नारायण कल की देवा, हे नाथ नारायण कल की देवा, श्री कल की कलयुग में नाम तुम्हारे। श्री कल की कलयुग में नाम तुम्हारे। हे नाथ नारायण कल की देवा, हे नाथ नारायण कल की देवा। हरे कल की, हरे कल की, कल की कल की, हरे हरे। हरे कल की, हरे कल की, कल की, हरे हरे। कल की, कल की, कल की, कल की, कल की, कल की, हरे हरे। कल की, कल की, कल की, कल की, कल की, कल की, हरे हरे। हरे हरे कल की, हरे हरे। हरे हरे कल की, हरे हरे। जय आदि श्री, जय जय कल की। 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 अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्णा, फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान श्री कृष्ण जवाब देने के क्रम में कहे कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, अर्थात यह कामना ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात बहुत भोगों से कभी न आघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान, वैरी। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। इस अग्नि के समान कभी पूर्ण न होने वाले कामना रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह कामना इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता रहता है। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कामना को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। हे मनुष्य, ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह कहता है कि इन इंद्रियों को स्थूल शरीर से अधिक बलवान जान, मन को इंद्रियों से अधिक बलवान जान, बुद्धि को मन से अधिक बलवान जान और आत्मा को बुद्धि से अधिक बलवान जान। अर्थात सूक्ष्म शरीर से अधिक बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से अधिक बलवान मन है, मन से अधिक बलवान बुद्धि है और बुद्धि से अधिक बलवान आत्मा है। इसीलिए तुम स्थूल शरीर को इंद्रियों के द्वारा अपने वश में कर, इंद्रियों को मन के द्वारा अपने वश में कर, मन को बुद्धि के द्वारा अपने वश में कर और बुद्धि को आत्मा के द्वारा अपने वश में कर। इसी आत्मा को समझना सबसे बड़ा खेल है। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और परमात्मा के द्वारा ये सब पहले से ही मारा जा चुका है। यदि तुम इस रहस्यमय भेद को जान गए तो तुम
इस कामना रूप शत्रु जिसको नहीं जीता जा सकता है, उसको बड़ी आसानी से मार सकते हो। हे मनुष्य, यह था रेडिएंट उपदेश ऑफ गीता चैप्टर 3, और यहीं पर आप आज्ञा दीजिए अपने ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण को। अगले वीरवार को मैं फिर आपके सामने आऊंगा रेडिएंट उपदेश ऑफ गीता का 4था अध्याय लेकर। उस दिन आप तैयार रहिएगा रेडिएंट उपदेश ऑफ गीता के 4थे अध्याय का सफर में चलने के लिए। तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।